Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel Soothing Studies. So in today's video we'll be starting off with a new topic and the topic is going to be ancient history. तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस वजह से आजकल रिसेंट ट्रेंड्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Earlier it used to be medieval and mostly the freedom struggle, but now they have literally asked so many questions from ancient history. Even I'm talking about SSC currently, but even in all other exams, there is a trend. What they do is that they, what the other exams do, they just follow the trends of SSC, okay? And SSC has followed the trend of UPSC for sure, because I've given this exam and UPSC did ask many questions from ancient history. So we'll be starting off with this topic, and the more bonus point for you is that it is going to be from Lucent. So all the content that I'm going to be sharing with you guys is going to be the only important content, okay, only important content from Lucent, okay. So this is going to make your journey very easier, okay, of studying this. So I'll be making these videos in many parts, okay. So this one is part number 1 for the discussion. And before moving forward, hello everyone, this channel is Soothing Studies by Tees, and if you liked the video, okay, first of all we'll be proceeding, and if you enjoyed the video, then you'll just hit the like button and you will subscribe to the channel. It gives us more motivation, and if you guys subscribe, then I'll just keep on making more videos, okay. It gives me a kind of a green flag to move forward with the content, okay. So just subscribe in maximum terms, and yeah. So without any further ado, let's begin. What I am going to be doing is going to be, give me a second, yeah, okay. So now beginning with the first thing, okay, first things first. So first of all, you should know that where do we start with the ancient history. So ancient, I'm not going to be starting up with the proper Stone Age. I'll just start with the Indus Valley, okay. Just give me a second. I think I should start with Indus Valley. So what I'm going to be starting up is going to be Indus Valley, okay. Indus Valley civilization is going to be our first topic for today, okay. And today I'll complete Indus Valley for you, okay. So first site that we will be starting up is going to be Harappa, and please mind my writing. I just, the digital handwritings of mine are not that good, okay, but I think you guys can bear. It's actually very legible. So it is from 25,000 BC to 1750 BC, okay. So I hope that how BC proceeds. What is the meaning of BC? Basically it is before Christ, and AC is anecdomy, okay. So this proceeds in a backward way, like for example we say that -1 is less than -2, -1 is greater than -2, okay. So similarly this is less than this, okay. So this is basically a greater term and this is basically a lesser term, okay. Just basic before starting, okay. So Harappa is one of the oldest site, first things, okay. Second things is that in India it has been there has been 925 total Indus Valley sites, and a maximum of them has been found in Gujarat, okay. Thirdly, mostly Indus Valley civilization was found to be around river Saraswati, okay. So Saraswati river now doesn't exist actually, in a way that it has been dried up, okay. River Saraswati, okay. Then who used the term, this term has been used by Indus Valley civilization, has been used by John Marshall. This is an important name, okay, and this has been asked like many times in the exams, okay. Now who was the discoverer? So who was the discoverer of Harappa? Basically Harappa is discovered by Dayaram Sahani, okay, and it has been discovered in 1921, okay. Then let us understand the Indus Valley का एक थोड़ा सा map, just a map, northern
southern and eastern and western. Okay, so these aspects let us study. So let me just change the color of the wing so that it's understood. So in northernmost was Ropar, which is in like it is near Satluj river. Okay, and it is in Gujarat. Okay, so I'll just write here also Satluj river. Okay, then we have in the let's go to southernmost, that is Daimabad, and as you guys know this is in Maharashtra, and this was near, okay, you don't have to know the name of the place. Okay, and also just add one more here. This is in northern, it is going to be Manda. Okay, and it was basically near the Chenab river. Okay, Manda side in Chenab river, and this is also in Gujarat. Okay, then we have westernmost. Okay, so westernmost is going to be Sukta Gendor, and this is basically in near Marakan coast in Pakistan Iran border. Okay, so ठीक है, and we have the easternmost. So what is going to be the easternmost? It is going to be Alamgirpur. Okay, so in the Alamgirpur we have this is basically in Uttar Pradesh, and it is near the Hindon river. ठीक है, so we have understood 4 northernmost, southernmost, easternmost and westernmost. Northernmost is Ropar and Manda. Okay, then easternmost is Alamgirpur, westernmost is Sukta Gendor, and the southernmost is going to be Daimabad. Okay, southern is Daimabad, western is Sukta Gendor, eastern is what? Eastern is Alamgirpur, and the northern is Ropar and Manda. Okay, so these are the ones. Okay, तो रोपर हमारी किसके साथ में थी? रोपर थी सतलुज के साइड में, मांदा थी चिनाब के साइड में, आलमगीरपुर हिंडन की साइड पे. ओके, एंड सुक्ता गेंदौर नियर मारकन कोस्ट, एंड ये आपका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है. ठीक है, सो ये चीज़ भी आप लिख लेंगे. एंड दाइमाबाद इज नियर इन महाराष्ट्र. ओके, सो लेट अस स्टडी द कैपिटल्स. ओके, सो कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली. ओके, सो इंडस वैली के जो कैपिटल्स थे उसमें 2 कैपिटल होते थे इनका. पहला तो हड़प्पा था, ठीक है, हमारी इंडिया का लार्जेस्ट साइट है, और दूसरा था मोहनजोदारो, ये पाकिस्तान का हाइटेस्ट लार्जेस्ट वन है, और ओवरऑल दिस इज द मोर लार्जर देन हड़प्पा. ओके, मोहनजोदारो. प्लीज़ माइंड माई स्पेलिंग. ओके, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर देती हूँ, आप ठीक से लिखना. ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अभी यहाँ लिखवा रही हूँ. इसको यार रिमूव ही कर दो, क्या लाइन बनी है, वाह. ठीक है, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लिखवा रही हूँ यहाँ पे. एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा सबसे पहले तो हड़प्पा इज इम्पोर्टेंट. वी नो मोहनजोदारो इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, वी नो देन चान्होदारो इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, then we have that Lothal is important. Then we have Kalibangan is important. Okay, and then we have Banavali is important. ठीक है, तो ये हमारे कुछ important sites थे. ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं. है वेरी इट वेंट यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, ये किस रिवर्स के पास थे? ठीक है, किस रिवर के नियर थे, और इनके एक्सकेवेटर्स के नाम भी हम यहाँ लिखेंगे. पहले रिवर लिख लेते हैं यहाँ. रिवर ये कौन सा वाला किस रिवर के पास था? ठीक है, जो आपका हड़प्पा था ये आपका रावी रिवर के पास था. मोहनजोदारो जो है ये आपका इंडस रिवर के पास था. चान्होदारो जो है ये आपका, ये भी आपका इंडस रिवर के पास था. ठीक है, देन वी हैव लोथल वॉज नियर मोगवा रिवर. Lothal, Kalibangan is going to be near the Ghaggar river, and Banavali is going to be near Ghaggar river. ठीक है, तो ये दोनों घग्गर की तरफ थे, ये दोनों आपके इंडस की तरफ से. और यू नो ना वेयर इज दीज प्लेस, दीज आर इन राजस्थान. ओके, लोथल इज इन गुजरात. ठीक है, और मोहनजोदारो ये तो आपको पता ही है. ठीक है, चान्होदारो मोहनजोदारो एक साथ ही है पाकिस्तान की साइड पे. ठीक है, देन वी हैव अच्छा स्टेट भी लिख दिया मैंने. अब हम इनके थोड़ा सा एक्सकेवेटर्स देख लेते हैं कौन कौन है इम्पॉर्टेंट.
ठीक है, इनके एक्सकेवेटर्स। आप ये बस एक बना के रख लो, इससे क्या हो जाएगा कि आप इजीली बाद में इनको रिकलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये सारा आपका वही से है, ल्यूसेंट से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका दयाराम। ठीक है, दयाराम ने डिस्कस की थी ये आपकी रबल दास बनर्जी और मैकियावेली। ठीक है, रबल दास बनर्जी एंड मैकियावेली। ठीक है, देन वी हैव सिंध वाली चानू दारो, ये आपकी सिंध में है। ठीक है, और ये भी आपकी सिंध में है, सिंध इन पंजाब। ओके, सॉरी पाकिस्तान। ओके, देन इसको भी मैके ने डिस्कवर किया था, MACKAY, मके, एंड इसे मजूमदार, मकेन मजूमदार। ठीक है, देन वी हैव इट इज भोगवा। ओके, भोगवा को किसने किया था? SR राव। ठीक है, देन वी हैव घाघर वाली साइड जो कि है हमारी कालीबंगन, इसको बीवी लाल बीके थापर। ओके, एंड यहीं लिख देते हैं तो अल्मानंद घोष। ठीक है, देन वी हैव ये वाली साइड जो भी घाघर के पास थी, ये है आपकी बाय RS बिष्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना हो गया है, आई होप आप लोगों ने मेरे साथ लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या देखना है हमें यहाँ पे? बेसिकली इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है। जैसे कि हड़प्पा से हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है उस पर आप लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे 6 हमें ग्रेनरीज मिली है, ग्रेनरीज जहाँ पे ग्रेन स्टोर करते हैं। ठीक है, क्ले फिगर की मदर, क्ले से बनी हुई मदर की फिगर मिलती है, मदर अर्थ, मदर फिगर ऑफ गॉडेस। ठीक है, और आपका पेंटेड पॉटरी भी यहाँ पर मिलती है। तो इससे आप लोग उनका डेवलपमेंट देख सकते हैं एक्चुअली कि कितना डेवलप्ड थे वो लोग। जैसे कि हड़प्पा में ये लोग ग्रेनरीज रखने लग गए थे, यानी कि डोमेस्टिकेशन हो गया था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन तो हो ही गया था बिकॉज ये आफ्टर कॉपर एज है ना, उसके बाद ये न्यूलिथिक एज के बाद है। तो हमारे पास क्ले में जो मदर फिगर थी गॉडेस की वो भी थी, और पेंटेड पॉटरी भी आपको यहाँ पर मिलती थी। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में एक बड़ी ग्रेनरी मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, देन आपको यहाँ मिलता है ग्रेट बाथ, बड़ी बड़ी चीज़ें है सारी मोहनजोदारो की, मोहनजोदारो बड़ा है। ठीक है, देन वी हैव ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर। ठीक है, देन वी हैव स्टीयलाइट बियर्डेड मैन, स्टीयलाइट बियर्डेड मैन। ओके, तो ये सब जो चीज़ें थी दीज ऑल वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन विच इज़ गोइंग टू बी चानूदारो। ठीक है, चानूदारो से जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज विदाउट अ सिटाडल। सिटाडल मीन्स हायर एरिया जहाँ पर अमीर लोग रहते थे। ठीक है, इट हैड इंक पॉट एंड इंक पॉट्स वर फाउंड एंड लिपस्टिक्स वर फाउंड। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, लोथल। ठीक है, तो लोथल में आपको क्या क्या मिलेगा? लोथल में आपको राइस हस्क मिला था, दैट मीन्स यहाँ पे राइस का उपयोग होना शुरू हो गया था। यहाँ पे आपको डॉक यार्ड मिला था। ठीक है, डॉक यार्ड मिला था, और यहाँ पे आपको क्या मिला था? पेंटेड जार जिसपे एक बर्ड और फॉक्स बने हुए थे। ठीक है, देन वी हैव लोथल हो गया, चानूदारो हो गया।
उसके बाद है हमारे पास बनावली। बनावली में आप बनावली मत लिखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, धोलावीरा का लिख लो। धोलावीरा, धोलावीरा से जो आपको मिला था, यहाँ पे आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला था, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स ऑफ टाउन डिवीजन मिला था, मिडल, अपर और लोअर, ओके। सुक्ता गेंदौर में आपको क्या मिला था, वेस्टर्न मोस्ट, बोन्स ऑफ हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स, दैट मीन्स यहाँ पे हॉर्स का डोमेस्टिकेशन हो गया था, ठीक है। दायमाबाद में आपको ब्रॉन्ज इमेजेस मिली थी, ये भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसके आसपास कुछ कंटेम्प्रेरीज भी चलते थे। कंटेम्प्रेरीज मतलब जो इसके साथ साथ पे सिविलाइजेशन थी, ठीक है। कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी इसके साथ साथ? इसके साथ साथ आपकी मेसोपोटामिया चल रही थी, ठीक है। इसके साथ आपकी चल रही थी इजिप्ट की और चाइना की, ठीक है। ये 3 जगह की सिविलाइजेशन साथ साथ चल रही थी, ठीक है। तो हमने सारा आज का जो है पार्ट डिस्कस किया है इंडस वैली से, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब हम जल्दी से इनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग चीज़ों को एक बार अच्छे से सेटल कर पाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है दैट इज़ इंडस वैली। तो इंडस वैली की अभी एक्चुअली मैं हड़प्पा के पॉइंट से दूंगा, तो इसको काट दो यहाँ पे। अभी हम इंडस वैली का मेजर डिस्कशन कर रहे थे, जब हमने बोला कि 2500 BC से लेकर 1750 BC से चलता है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट साइट हड़प्पा थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया था, बट एक्चुअल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टोटल साइट्स थी, दिस वाज 925 एंड मैक्सिमम वर इन गुजरात, okay, around, they were basically around river Saraswati. So you would actually make out a point from here that river Saraswati was very large, okay, river at that point of time, because it holded an entire civilization, maybe even larger than Ganga river, okay. Then we have John Marshall, okay। तो जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने पहली बार जो है अपना इंडस वैली को डिस्कवर किया था। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में, इन्होंने बेसिकली टर्म दिया था इंडस वैली, और डिस्कवर इन्होंने किया था, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो चीज़, इंडियन ने ही डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास ये कुछ साइट्स थी, जैसे कि नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। नॉर्दर्न मोस्ट में हमारे पास आया था रॉपर और मांदा। उसके बाद हमारे पास आया था सुक्ता गेंडोर और मारकन कोस्ट के आसपास जो था अपना वेस्ट में, अपना ईस्ट में था आलमगीर यूपी में, और दायमाबाद था वेस्टर्न मोस्ट, सॉरी सदर्न मोस्ट, ओके। अब हम कैपिटल्स पढ़ रहे थे। कैपिटल्स का हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती होती है हड़प्पा, और दूसरी आती है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वॉज बिगर देन हड़प्पा, ओके। इंपॉर्टेंट साइट्स हमने पढ़ी, जैसे कि हड़प्पा में सबसे पहली बात है रावी रिवर के अराउंड पे थी, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो इसका दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इंडस की है और चानुदारो भी इंडस की है, इंडस के आसपास दोनों, क्योंकि सिंध से है। रवार दास बनर्जी एंड मकई विलर, और इसको मकई और मजुमदार ने किया था। लोथल गुजरात में है, भोगवा रिवर के पास, SR राव ने किया था। कालीबंगन घग्गर, बीवी लाल, बी के थापर और आलमानंद घोष। उसके बाद है बनावली घग्गर के पास है, और RS बिष्ट ने किया था। तो अभी हम इम्पोर्टेंट देखें तो हड़प्पा हमारी रावी के पास थी, ठीक है। ये दोनों हमारी इंडस वाली हैं। ये वाली हमारी किसके अराउंड थी, भोगवा के अराउंड थी। ये वाली हमारी घग्गर के अराउंड थी, और बनावली भी हमारी घग्गर के अराउंड थी, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि यार बहुत सारी साइट जो है वो इंडिया में है, लेकिन सबसे बड़ी वाली पाकिस्तान की साइड चली गई आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो आपको समझना है, सबसे बात हड़प्पा में आपको 6 ग्रेनरीज मिली थी, मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी मिली थी। यहाँ पे क्ले के मदर फिगर ऑफ गॉडेसेस मिले थे, पेंटेड पॉटरीज मिली थी। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिली थी, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमन डांसर और स्टेलाइट ब्रेडेड मैन, ठीक है, ये सब मिले थे। उसके चाजुदारो में क्या था, विदाउट सिटाडल था पूरा एरिया, इंक पॉट और लिपस्टिक्स के सैम्पल्स थे वहाँ पे। उसके बाद लोथल में आपको राइस हस्क, डॉकयार्ड, पेंटेड जार्स, ठीक है, पेंटेड जार्स। और पेंटेड पॉटरी कहाँ पे थी, पेंटेड पॉटरी थी हमारी हड़प्पा में, पेंटेड जार्स थे लोथल में। लोथल में आपको राइस हस्क भी मिला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पता लगता है कि राइस का वहाँ पे जो है वो चीज़ें शुरू हो गई थी। और यहाँ पे डॉकयार्ड्स, यानी कि यहाँ पे ट्रेड जो था वाया सी रूट, वो भी शुरू हो गया था, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास धोलावीरा।
धोलावीरा भी हमारा गुजरात में ही है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था, 3 पार्ट्स थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों ही, कि वाटर ड्रेनेज था और 3 पार्ट्स था, सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, अपर, मिडल एंड लोअर। अदरवाइज अपर और लोअर ही होता था पहले, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिला यहाँ। उसके बाद सुख्ता गैंदौर में यहाँ पे हॉर्स की बोन्स मिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये सब था हमारा। और कंटेम्प्रेरीज पढ़े थे हमने। कंटेम्प्रेरीज में हमारे पास मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड चाइना। तो इन लोगों के साथ उनका ट्रेड भी चलता था, ठीक है। तो ट्रेड होता था, स्पाइसेस होते थे, एंड आई थिंक स्टोन्स होते थे लाइक लैपिस लजूली एक्सेट्रा, बिकॉज वो अफगानिस्तान में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के सेंस में, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ये बता दिया है। तो आज का वीडियो मैं यही रोक रही हूँ। दिस इज़ पार्ट 1। इंडस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट से हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैदिक। और वीडियोस जल्दी जल्दी आएंगी। ये पूरा टॉपिक हम एंशिएंट का कवर कर देंगे, बिकॉज मेरे चैनल पे आई थिंक फ्रीडम स्ट्रगल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मैंने एंशिएंट नहीं अच्छे से पढ़ा रखा। एंशिएंट बहुत स्कैटर्ड वे में था, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से और ल्यूसेंट से पढ़ा रही हूँ, उसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, आप लोगों को शायद नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइक छोड़ देना मेरे लिए, ताकि पता लगे आपको अच्छे से समझ आया है। कमेंट सेक्शन में यू गाइस कैन ऑलवेज कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पे चाहिए, आपके डाउट्स या जो भी हैं, ठीक है। और या ठीक है। So that's it for today. Thank you so much guys. Have a very nice day. Stay safe, stay healthy. Bye.